just so far what are the points are discussed, so that I can Okay. Till date, we have discussed about various tools, online research tools, which are available to help the researchers. We have discussed about quantitative and qualitative analysis tools like NVivo, SPSS. These are the main basic tools we have discussed here now. And we have also covered Excel for research. Till date, we have covered this topic along with there is one session on government research funding agency from MSME. And this Okay, one madam, is thank the you. day 7. Oh, okay, sir. Thank you very much, madam. I should thank Dr. Swapna madam, Sage University, and her entire team, those who are involved in planning, developing, and organizing this summer workshop relating to research, tools development, data analysis. I also thank Madam Sonal Tripathi, the head applied science, the Sage University Indore, and most honorable Mr. Sanjeev Agarwal, the CMD, Sage University Indore, maybe who is the inspiration for doing all such activities by the faculty of Sage University. And all the faculty members and the participants, the research scholars, those who join this program. And I feel privileged because this is my first interaction with the Sage University, the renowned private university in our country, and has many campus in different places of this country. But therefore I feel privileged to be part of this summer course. So my point of discussion will be on one specific qualitative data analysis tool, that is QDA minor light. QDA, that means qualitative data analysis, minor light. So I'll give you some theoretical idea. I will demonstrate from how you can start working with QDA minor light. And in the last part of the program, I want everybody should do with me. I will be online. You have to do in your laptop. I suggest everybody, like, you join from your mobile and you make available your laptop free. In the mobile, you can listen and you can see what I do from my side. And in your laptop, you can practice, because this is a qualitative software for data analysis, only the qualitative data. And in a two-hour session, I know it is difficult for you to follow, but I'll try to make it easy, make it simple, and tell you the very fundamentals, so that at least you can start working. And then you can take the help of YouTube channels. And I also personally uploaded two videos on how to work with the QDA minor light. So that also you can refer, or you can refer with so many other experts, those who are familiar with the QDA minor light. So then you can learn how to work with the QDA minor light. And I should also tell you that how I learn. I learn on my own. During COVID, I think during COVID, I learned QDA minor light. And as Madam introduced me, I have a thorough knowledge of the quantitative data analysis, statistical applications, SPSS. But during this COVID, I try to learn a qualitative software, because as a qualitative researcher, we face a lot of difficulty in analyzing data. So what do it?
let me start my presentation. So initially maybe 15 to 15 minutes. I'll give you a background of the qualitative research, some idea which I feel is essential to work with a software like qualitative data analysis software, QDM Analyte. Some brief idea. So you may feel it is a repetition, but this is not repetition, but I'll give you some idea. Then I'll come to my software. Then I'll demo. Then I'll ask you to demo. And anytime, any point of time, if you want to ask anything, you can unmute and ask, or you can use your chat box. You write in your chat box, and then I'll try to incorporate, or I'll try to clarify. So your question or your difficulty. So I am with you maybe up to 2:30 I'll be here. So no issue. But I want you should be carefully listen and take interest. Try to participate in the discussion also. Because online में थोड़ा difficulty है, like you are somewhere, I am sitting here, I see only your name, so even your face is not available here. So difficult to keep you attended. So therefore I suggest all of you, this is a very important tool. I think every researcher should know, whichever subject you maybe belong to, any maybe from social science, maybe from any subject where the qualitative data involves in research, then definitely this will help you in analyzing your data. Okay, so let me go with a presentation. I have a very thorough presentation. Let us present now, and then we'll see. Slide show. Excuse I'll me, make. sir. Yes. Let me interrupt. Participants are more comfortable in bilingual. Okay, madam. Okay. ठीक है, Okay, madam. sir. Thank you so much. Okay. So now you see, can you see my PPT, the Yes, full sir. screen? Yes. Yes, sir. Okay. So you help me, madam, when मेरा जो स्लाइड मूव नहीं करेगा ना, मुझे थोड़ा बता दीजिए, बिकॉज ये ऑनलाइन में ऐसे होता है, like I'm speaking something and showing something. Yes, Okay. sir. And I am also very, one of the expert who has given, I think, more than 50 lecture on online teaching and assessment. So this is my experience. Sometimes Yes. I speak here, but my slide is not moving. So you please keep on informing me. Okay. Yes, So let us start. So मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स है हमारा पास, मैंने जो बताया आपको, दो टाइप का रिसर्च मेथड होता है, मोस्टली दो. नाउअडेज हम 3 भी ऐड कर दिया. द क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, और मिक्स रिसर्च होता है. बट बेसिकली हमारा पास 2 रिसर्च मेथड है क्वांटिटेटिव. सो क्वांटिटेटिव में हम लोग वो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज प्योर क्वांटिटेटिव रिसर्च. हम जब सर्वे करते हैं, सर्वे रिसर्च भी क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो आई हैव ओनली वन लाइन ऑफ डिफरेंस. ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का बीच में जो डिफरेंस है, मेरा हिसाब से ये नेचर ऑफ डाटा का स्वरूप क्या है और आपका डाटा कैसा है. आपका डाटा जब नंबर में आएगा, क्वांटिटेटिव में आएगा, नंबर में आएगा, उसको हम बोलेंगे जो नंबर में आएगा वो टाइम आपका किसका बात दिया. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. I'll take. Thank you. Okay. So then, sorry, madam, there's some agent है. जो नेचर ऑफ द डाटा मैंने बताया आपको, क्वांटिटेटिव में क्या होता है ना, आपको नंबर, आप एक अचीवमेंट टेस्ट किया, अचीवमेंट टेस्ट का क्या होता है ना, स्कोर आएगा. आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया, वो पर्सनालिटी टेस्ट में आपका स्कोर आएगा. सो ये जो क्वांटिटेटिव डाटा में जो नंबर मिलता है, जो स्कोर मिलता है, उसको एनालिसिस करके और उसको प्रेजेंटेशन करना बहुत आसान है. सो मेरा हिसाब से डूइंग क्वांटिटेटिव रिसर्च ये बहुत आसान का बात है. जब आपको कोई एक्सेल मालूम है और SPSS मालूम है, बट उसको डाटा एंट्री करके आपको टेबल बना देंगे, आपको ग्राफ बना देंगे, बढ़िया आप कर देंगे. बट
बट आपका डाटा जब क्वालिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव मीन्स आपका डाटा जब आएगा वर्ड्स में, डाटा वर्ड्स में आएगा, वर्ड्स में आएगा मीन्स आप एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, वो इंटरव्यू में आप आपका सैंपल को क्वेश्चन पूछा और वो उनको आंसर दिया, वो आंसर को आप लिखे, वो आपका पास एक पैराग्राफ मिलेगा, आपका पास 5 लाइन्स मिलेगा और आपका पास एक पेजेस आएगा। सो एक इंटरव्यू आप करेंगे, उसका बाद में आपका क्या होगा ना, आपका पास पेजेस 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 डाटा आएगा और डाटा वर्ड्स में मिलेगा। सो ये है क्वालिटेटिव डाटा। जैसे आजकल जो टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हैं रिसर्च के लिए, और एक काइंड ऑफ डाटा आता है आजकल, वीडियो डाटा। वीडियो डाटा, सपोज आप काम कर रहे हैं, ये क्लासरूम बिहेवियर ऑफ ए टीचर, टीचर का जो क्लासरूम बिहेवियर कैसा है ये आप, सो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अभी क्लासरूम बिहेवियर ऑफ टीचर आप जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे, वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा दैट इज ऑल्सो क्वालिटेटिव डाटा। आजकल और करते हैं, सपोज आपको आप देखना चाहेंगे ये स्कूल, सपोज एक ही सेज स्कूल है और बाकी कोई स्कूल है, वो स्कूल का अंतर क्या है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनका डिजाइन, उनका क्लासरूम का डिजाइन, अंदर का डिजाइन कैसा है, उनका बिल्डिंग का डिजाइन कैसा है, और उनका लैबोरेटरी लाइब्रेरी के कैसे डिजाइन किया। सो इसके लिए आप सब फोटो खींच के लिया। सो ये जो फोटो खींच के आप लिया, वो फोटो एक भी क्वालिटेटिव डाटा है। तो में जो क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है ना, आप जो डाटा आता है वर्ड्स में, पैराग्राफ्स में, पेजेस में, जब डाटा आता है वीडियो में, वीडियो क्लिप्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, और आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, और आपका फोटोग्राफ, कोई भी फोटोग्राफ, आजकल फोटोग्राफ इमेज ये सब चलता है। सो ये क्वालिटेटिव। और ये मेरा स्क्रीन में जो रिसर्च मेथड से, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, ये नॉट इन एजुकेशन, एजुकेशन में नहीं है, सोशल साइंस रिसर्च में ये यूज होता है। साइंस लोग का जो रिसर्च है दैट इज प्योरली क्वांटिटेटिव, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च ही साइंस वाला करते हैं, उनका पास क्वालिटेटिव का नहीं है। बट जो भी अदर सोशल साइंस इन ह्यूमैनिटीज, आपका साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, फिलोसफी हो, इवन फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसी में जो है वो सब है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, वहाँ फॉलो हो सकता है। तो इसीलिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च एजुकेशन में बहुत फेमस है, हिस्टोरिकल रिसर्च करता है, उसी के लिए आपको क्वालिटेटिव डाटा मिलता है, और वो क्वालिटेटिव डाटा को एनालिसिस करने के लिए आपको वो ये जो टूल है आप इसको यूज कर सकते हैं। और सेकंड जो है ग्राउंडेड थ्योरी। हमको सोशल साइंस में इफ यू वांट टू डेवलप ए थ्योरी, आप कोई थ्योरी डेवलप करना चाहेंगे, कोई न्यू एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे, सो आपको ग्राउंडेड थ्योरी का मेथड यूज करना पड़ेगा। ग्राउंडेड थ्योरी वो आपके फेनोमेनोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी में का मेन फोकस है इंटरप्रिटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टिसिपेंट और द सैंपल। एक स्टूडेंट है, वो क्लास अटेंड कर रहा है, और एक टीचर का क्लास अटेंड करने के बाद में उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो फीलिंग है, उसको आप स्टडी करना चाहेंगे, सो आपको फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च वो करेंगे। एक टीचर है, काम कर रहा है एक स्कूल में, वो टीचर को क्या फीलिंग होता है, सो उसको आप जब स्टडी करेंगे वो होगा आपका फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। वो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में भी आपको मिलता है डाटा, वो क्वालिटेटिव डाटा मिलता है। एथनोग्राफी डाटा जो है वो भी एथनोग्राफिक रिसर्च होता है, और केस स्टडी। ये आपका पास जितना मैंने आपको देखा है यहाँ, वो सब है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। आप ऐड कर सकते हैं कंटेंट एनालिसिस, एक मेथड होता है, इवन हमको लैंग्वेज में यूज करते हैं, एजुकेशन में यूज करते हैं, फिलोसफी में भी यूज होता है कंटेंट एनालिसिस। सो ये बहुत सारा जो रिसर्च टाइप है, ये हर रिसर्च टाइप में हमको क्वालिटेटिव डाटा, प्योरली क्वालिटेटिव, कोई नंबर नहीं है, ओनली हमारा पास वर्ड्स होगा, हमारा पास पिक्चर होगा। सो ये डाटा को हम एनालिसिस जब करेंगे, सो दैट बिकम्स ए
क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। सो इसीलिए मैंने आपको जो बताया, ये क्वालिटेटिव जो डाटा होता है, ये जो स्क्रीन में है। सो कैन यू सी माय स्क्रीन चेंज? Yes, sir. ओके, सो इसी में आपको मैंने दिखा रहा, जो क्वालिटेटिव डाटा होता है, मैंने आपको बताया टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, फोटोग्राफ होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होता है, और वीडियो भी रिकॉर्डिंग होता है। सो ये जो सॉफ्टवेयर में आपको डिस्कशन आपसे करेंगे, उसी में आप टेक्सचुअल डाटा एंड फोटोग्राफ इमेज को एनालिसिस कर सकते हैं। ये इसमें हम वीडियो ऑडियो को हम एनालिसिस नहीं कर सकते। इनका जो लिमिटेशन है, उसमें टेक्सचुअल डाटा होगा। लाइक आप इंटरव्यू किया, उसमें जो डाटा मिला उसको कर सकते, कुछ फोटोग्राफ लिया उसको भी आप एनालिसिस कर सकते। ये इसका लिमिटेशन है, इसका यूज है। और आप लोग जितना लोग सुन रहे हैं यहाँ से, वो क्वालिटेटिव डाटा में आपका पास ये वेराइटी का डाटा मिलेगा, उसको हम एनालिसिस करते हैं। सो मैं आगे थोड़ा जाने से पहले मैं थोड़ा जो भी पार्टिसिपेंट है उनसे उनसे हम बात करेंगे। अभी हम क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। से मैं बताने से पहले, कोई भी पार्टिसिपेंट यहाँ है, जो मेरा एक सवाल है, अभी मैनुअली हम लोग क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है मैनुअली हम करते हैं। मैनुअली, हमारा पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारा पास कंप्यूटर नहीं है, हम मैनुअली इंटरव्यू किया है। अब मेरा पास 10 क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन को ला के मैंने 20 लोग को पूछा और उनका आंसर मैंने कलेक्ट किया। सो उसको मैंने कलेक्ट करने के बाद में उसको कोशिश किया डाटा एनालिसिस करने में। मैनुअली हम लोग कैसे डाटा एनालिसिस करते हैं? एनीबॉडी कैन रेस्पॉन्ड, बताइए। इसमें कोई आपका कोई आंसर रॉन्ग नहीं होगा, जो भी आंसर आप देंगे वो सही होगा। सो आप कैसे करते हैं? ओके, कुमुद मैडम बताइए। Sir, we basically transcribe the interview. Very good. Then we go through it and then cull out relevant themes. Yeah. And then thematically we do that, but it takes a lot of time. ये नहीं, Basically. हाँ वो ठीक है, यू आर राइट, वेरी गुड मैडम। सो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले उसको जो इंटरव्यू हम किया है उसको ट्रांसक्राइब करते, उसका बाद में उसको ध्यान से पढ़ते, इंटेंसिवली वी रीड। सर कोडिंग भी करते हैं ना क्वालिटेटिव डेटा पे? ओके, वेद कुमार यू आर टेलिंग हम लोग कोडिंग भी करते, वो भी सही है। हम पहले उसको एनालाइज करने के लिए ट्रांसक्राइब करते, उसका बाद में उसको पढ़ते, उसको पढ़ने का टाइम में उसको हम कोडिंग करते, और कोडिंग करने का बाद में फिर हम उसको बहुत सारा कोडिंग जो हुआ है उसको कोडिंग मिला के एक ग्रुप डेवलप करते, उसको कैटेगरी हम बोलते और एक थीम बोलते उसको। सो पहले आप ट्रांसक्राइब कर दिया, उसका बाद में आप क्या कोडिंग कर दिया, कोडिंग करने के बाद में उसका आप कैटेगराइज कर दिया, कैटेगराइज का करने के बाद में आप एक थीम डेवलप हुआ, दैट इज एक्सप्लेनेशन, दैट इज ए टेंटेटिव थ्योरी। You know, the main purpose of qualitative research is to explain something, to give a new explanation, or to develop a new theory. Theory means theory development का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, बट इसी में जो क्वालिटेटिव रिसर्च हम लोग करते हैं, कोई पीएचडी स्कॉलर है और कोई फैकल्टी है, इसमें हम कोशिश करते हम कैसे एक टेंटेटिव थ्योरी, एक एक्सप्लेनेशन, एक बढ़िया वाला एक्सप्लेनेशन, एक मॉडल हम उसको डेवलप करेंगे थ्रू आवर क्वालिटेटिव रिसर्च। ये होता है। ओके, सो यू आर वेरी गुड। एनीबॉडी वांट टू से समथिंग हाउ वी डू एनालाइज द क्वालिटेटिव डाटा और व्हाट टू डू इन द क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस? एनीवन? ओके, सो ये जो होता है इसमें हम, दिस इज ए प्रोसेस वी टेक, एंड जो कुमुद मैडम बताया था, लाइक ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम रियली। हम क्वालिटेटिव डाटा में जब काम करेंगे वो हमको टाइम लगेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इवन हम सॉफ्टवेयर में करेंगे भी, इसमें थोड़ा, इसी में भी हमको टाइम लगेगा, इतना कम टाइम में नहीं होगा। बट बिकॉज जो नेचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसा है, हमको टाइम दे के करना पड़ेगा, हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। ये नेचर ऑफ द क्वालिटी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट एज ए क्वालिटेटिव रिसर्चर हमको, जब हम मैनुअली डाटा एनालिसिस करते, हमको एक डिफिकल्ट होता है। कैन एनीबॉडी गेस क्या डिफिकल्ट होता है क्वालिटेटिव रिसर्चर को डाटा एनालिसिस करने में और उसको डाटा प्रेजेंटेशन करने में?
आप एनालिसिस तो ऐसे मैनुअली कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जब मैनुअली एनालिसिस करते हैं उसका बाद में जाके उसको प्रेजेंट करते, प्रेजेंट में जो रिपोर्ट बनाते, डाटा एनालिसिस का चैप्टर आप लिखते, उसी में क्वालिटेटिव रिसर्चर को एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्चर फटाफट वो टेबल जनरेट कर देता है, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी, मीन, ये सब निकालता है, टी टेस्ट निकालता है, और फिर बढ़िया ग्राफ बनाता है, बढ़िया ग्राफ बना देता है उसका। सो इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्चर का जो रिपोर्टिंग है वो बहुत बढ़िया होता है, बिकॉज उनका फुल ऑफ, जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर का रिपोर्ट होता है फुल विथ टेबल्स, ग्राफ्स, ये सब होता है। बट एज ए क्वालिटेटिव रिसर्चर उसको वो प्रॉब्लम उनको होता है, वो टेबल बना नहीं पाता, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए टेबल। मैनुअली आप जब करेंगे, उसको करते हैं, कुछ लोग करते हैं, और उसको डायग्राम बनाने में काफी टाइम लगता है, और बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं, जिसको होता है वो डायग्राम बना भी नहीं पाएगा। सो ये सब कंटिन्यूअसली ये डिफिकल्ट हमको क्वालिटेटिव रिसर्चर को होता है, दे कैनॉट प्रिपेयर द टेबल, दे कैनॉट प्रिपेयर द ग्राफ, ये लोग नहीं होता है। So this is one of the challenges, or one of the challenge that qualitative researcher face. So but ये जो qualitative data analysis सॉफ्टवेयर है, ये आपको मदद करेगा। ये आप सपोज आप टेबल बनाना चाहेंगे, आप फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ये इसी में आप करेंगे आपका क्वालिटेटिव डाटा को। आप चाहेंगे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ भी इसी में आप बनाएंगे। सो ये इसीलिए ये सॉफ्टवेयर आप लोग जिसको पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया डेवलप होगा, सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू टू प्रिपेयर योर रिपोर्ट। आपका रिपोर्ट में भी टेबल आएगा, आपका रिपोर्ट में भी ग्राफिक्स आएगा, जो ग्राफ्स आएगा ये आएगा। फिर आपका जो रिसर्च रिपोर्ट होगा दैट विल नॉट बी मोनोटोनस, वो आपको बढ़िया लगेगा, बाकी लोग पढ़ने के लिए लाइक इच्छा प्रकट करेंगे। सो ये इसका बेनिफिट है। ओके, लेट अस गो टू द, ये मेरा जो स्लाइड है मैंने इसमें बताया क्वालिटेटिव रिसर्च में थोड़ा आइडिया आपको भी होना चाहिए। एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग करते क्या है, आप इमेजिन करिए, आप 10 क्वेश्चन लेके डाटा कलेक्शन किया 20 टीचर से, और एक ही टीचर का, सपोज आपका 20 क्वेश्चन है, एक ही टीचर का आप जो ट्रांसक्राइब कर दिया वो हुआ 4 पेजेस। आप इमेजिन करिए एक टीचर का 4 पेजेस है, और आपका पास 20 टीचर्स है। सो देन आपका पास टोटल 80 पेज है, 80 पेज इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्शन। सो ये 80 पेज को आप डाटा एनालिसिस करेंगे। सो क्वालिटेटिव रिसर्चर क्या करता है ना, वो जो 80 पेजेस है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता है, पढ़ के जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको वो निकालता है, उसी से उसमें निकालता है। सो इसमें ये स्लाइड में आपको मैं पूरा जो एक्चुअली डाटा कैसे एनालिसिस होता है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस में, और इसको उसका बाद में ये जो स्टेप इसमें है हम उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में करेंगे। सो पहले हम मैनुअली कैसे करते हैं, ये वेरी सिस्टमेटिकली मैंने लिखा है, ये मैनुअली हम कैसे करते, और ये ऑल स्टेप को हम करेंगे उसी में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। फिर जाके आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको कुछ सीखने का मिलेगा। ओके, जो फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है यहाँ से, डाटा ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया, आप इंटरव्यू कर दिया, इंटरव्यू आप जो किया वो टाइम में इंटरव्यू का रिकॉर्ड कर दिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दिया, और ऑडियो रिकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर में फिट नहीं आएगा, इसलिए वो ऑडियो रिकॉर्डिंग को आप क्या करेंगे, अभी सुनेंगे और इसको लिखेंगे, टाइप करेंगे, कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा। ये डाटा एनालिसिस करने के लिए आप इसको टाइप करना पड़ेगा, और ये जो आप टाइप करेंगे दैट इज नोन एज डाटा ट्रांसक्रिप्शन। पहले आपको पढ़े, उसको फिर लिखे और सुने, लिखे, ये हो गया आपको डाटा ट्रांसक्रिप्शन। सो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस कंप्यूटर में करने के लिए आप उसको पहले टाइप तो करिए, अच्छा से ट्रांसक्राइब करिए, और सेकंड जो पॉइंट है
ट्रांसक्राइब हो गया अभी। और द सेकेंड पॉइंट हमारा आता है मेमोइंग। एनीबडी कैन टेल व्हाट इज मेमोइंग? एनीवन? एनी पार्टिसिपेंट? एनी आइडिया? कभी सुना ये वर्ड मेमोइंग? हेलो, एनीवन? नो? ओके। सो मैंने बताया आपको, अभी आप ट्रांसक्राइब कर दिया, आपका पास सो मेनी पेजेस है। सपोज एक ही टीचर का आप एग्जाम्पल लीजिए, एक ही टीचर का डाटा लीजिए और उनका 4 पेजेस का डाटा आपका पास है। मेमोइंग में क्या होता है ना, मेमोइंग में दो चीजें हम करते हैं। एक चीज क्या करते हैं, उसको लाइन बाय लाइन उनका जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको हम पढ़ते, लाइन बाय लाइन पढ़ते। और लाइन बाय लाइन हम जब पढ़ते हैं वो टाइम में हमको लगता है कुछ सेंटेंस है व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पूरा जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ आप पढ़े और पढ़ने के बाद में आपको लगता है ये दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट द एम्स ऑफ लाइफ। पार्टिसिपेंट को मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आपका लाइफ का एम क्या है? वो जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है उसको आप पढ़े। पढ़ने के बाद में आपको लगा इसी में पार्टिसिपेंट उनका लाइफ का जो मुद्दा है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पज है, उसका बारे में वो आंसर दिया है। इसीलिए वो पेज का साइड में आप लिख दिया मेम जे एम्स ऑफ लाइफ। सो मेमोइंग इज व्हाट? Now you have to read and you have to give your personal interpretation. Memoing is the personal interpretation of the researcher about the data. Because आप तो ऐसे पेज देखेंगे 4 पेजेस, कोई हेडिंग नहीं है उसमें, आप ऐसे लिख दिया क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। बट अभी आप जब पढ़ेंगे उसको, उसी में आपको लगेगा इसमें पर्पज ऑफ लाइफ बताया, इसी में वो लाइफ में चैलेंजेस क्या बताया, इसी में ये चैलेंज कैसे फेस वो किया वो बताया। सो ये जो लाइन है उसको दिस इज ए पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसर्चर। सो आप वो डाटा का साइड में लिख दे मेमोइंग। सो मेमोइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन व्हेन यू आर डूइंग डाटा एनालिसिस मैनुअली। आप मैनुअली जब करते हैं वो टाइम में मेमोइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोइंग के बाद में अभी आया सेगमेंटिंग। सेगमेंटिंग सम लोग, कुछ लोग बोलते हैं उसको एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है ना, ये पैराग्राफ आप पढ़ा, पैराग्राफ में 6 लाइन है। ये 6 लाइन जो आपका सैंपल बोले है, ये जो 6 लाइन है, ये 6 लाइन पूरा एंटायर 6 लाइन इज नॉट इंटरेस्टिंग टू यू। एंटायर 6 लाइन इज नॉट रिलेटेड टू योर रिसर्च पर्पज। सो आपका रिसर्च पर्पज के लिए ये पूरा नहीं है। बट ये 6 लाइन से 2 लाइन से और 3 लाइन से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन करिए। एंड दिस 2 लाइन इज एग्जांपल ऑफ सेगमेंटिंग। सो क्वालिटेटिव डाटा रिसर्च डाटा एनालिसिस स्टार्ट हुई थी ब्रेकिंग द डाटा इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आप समझने के लिए कोशिश के लिए, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस जो शुरू होता है वो एंटायर डाटा को ब्रेक करके छोटा छोटा करना इज द फर्स्ट स्टेप। अब ये जो सेगमेंटिंग इज द स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। सो आपका पास जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव था, ये जो 6 लाइन टीचर बोले और सैंपल बोले, दैट इज ऑल 6 लाइन इज नॉट इम्पोर्टेंट टू यू। ये 6 लाइन से ओनली 2 लाइन इज इम्पोर्टेंट। सो वो 2 लाइन को आप अंडरलाइन करिए। मैनुअली हम जब करते ऐसे करते, मैनुअली हम लोग जो पहले करते थे उसको हम 2 लाइन को अंडरलाइन करते और उसको हम बोलते ये है कि सेगमेंट है, सेगमेंट एलिमेंट द सेम कंसेप्ट। सो आप अभी ये जो सेगमेंट कर दिया बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपका 6 लाइन से ओनली 2 लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस 2 लाइन इज सेगमेंट। ये 2 लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको निकाल दिया है। उसका बाद में हम क्या करते हैं, वी गो फॉर कोडिंग। ये सब हम करेंगे इसमें, सेगमेंटिंग इसमें भी करेंगे और कोडिंग में इसमें करेंगे। सो उसका बाद में हम क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में हम लोग जाते कोडिंग करते। सो कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग का मतलब क्या होता है ना, कोडिंग जो होता है
कोडिंग इज ए शॉर्ट नेम। सपोज आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसी में 2 लाइन आप अंडरलाइन कर दिया, आप बोले ये 2 लाइन इज इंपॉर्टेंट। सो ये 2 लाइन का एक नाम देना है। मेमोइंग में आप लिखा था, ये 2 लाइन जो है ना वो मेमोइंग में आप लिखा था, दैट वाज योर पर्सनल इंटरप्रिटेशन। अभी ये जो 2 लाइन का साइड में आप लिख दीजिए एम्स ऑफ लाइफ, ये डिस्क्रिप्टिव कोडिंग। आप जो लिखेंगे एम्स ऑफ लाइफ, दैट इज ए डिस्क्रिप्टिव कोडिंग। सपोज मैंने लिख दिया ए एम्स ऑफ लाइफ, AOL, एम्स ऑफ लाइफ। सो ये जो AOL है दैट इज ए सिंबलिक कोडिंग। सो हमारा पास हम डिस्क्रिप्टिव कोडिंग भी कर सकते हैं और सिंबलिक कोडिंग भी कर सकते हैं। आपको जैसे सुविधा है, आपको जैसे कंफर्टेबल है आप ऐसे करिए। डिस्क्रिप्टिव कोडिंग में क्या होता है ना, ये कोई भी पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, ये एम्स ऑफ लाइफ है। बट ये जो सिंबलिक कोडिंग में सभी लोग को समझ नहीं आएगा, बिकॉज आप कोड यूज किया AOL, एम्स, A फॉर एम्स, O ऑफ L लाइफ। सो आप उसको कोडिंग करेंगे। ये मैनुअली हम करते हैं, इसमें हम करेंगे, हमारा डाटा को पढ़ेंगे और उसका एक कोड करेंगे। ओके, सो कोडिंग के बाद में हम लोग वी गो फॉर ए कैटेगराइजिंग। कैटेगराइजिंग में क्या होता है ना, 2-3 कोड को मिला के हम एक में बड़ा कंसेप्ट मिलता है, दैट इज हम बोलते कैटेगराइजिंग, थेमाटाइजिंग। एक बड़ा जो आता है। सो कोडिंग करने के बाद में वंस यू आप पूरा जो कोड कर देंगे, कोड करने के बाद में आप पढ़ेंगे, आपका सभी कोड को आप जब पढ़ेंगे फिर आपको लगेगा ये जो 2-3 कोड से दैट इज रिलेटेड टू वन थीम, वो थीम का नाम आप दे दीजिए, दैट इज कैटेगरी। समझ आपका पास 20 कोड है, 20 कोड को आप 4, 5 और 6 कैटेगरीज में डेवलप करेंगे। बिकॉज हमारा जो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, डाटा जो रिसर्च होता है उसी में वो एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, और एक्सप्लेनेशन आपका रिपोर्ट में आएगा। एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट थीम और विदाउट कैटेगरीज। सो आप कैटेगरीज करेंगे, और कैटेगरीज करने के बाद में फाइनली आपका जो है ड्राफ्ट थ्योरी और टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन आप बनाएंगे। दैट मीन्स आप देखिए कोडिंग को लेके कैटेगरीज लेके फाइनली थ्योरीज, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। और उसका बाद में फाइनली उसका बाद में आप रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, जैसे फॉर्मेट आपका है यही फॉर्मेट में करेंगे। सो नाउ अभी मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टेड विथ ही डाटा ट्रांसक्रिप्शन हम लोग किया, और फिर मेमोइंग किया, सेगमेंटिंग भी किया, कोडिंग, कैटेगराइजिंग, थ्योराइजिंग, फाइनली आप रिपोर्टिंग करेंगे। हमारा रिपोर्ट में क्वालिटेटिव है, डाटा है, इंटरव्यू से डाटा लिया है, फोटो से डाटा लिया है, बट अभी आप टेबल बना सकते, अभी आप फ्रीक्वेंसी परसेंटेज दे सकते, अभी आप ग्राफ भी बना सकते। सो ये सब आप कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस गो टू द, ये जो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर मैंने स्क्रीन में मैंने दिखाया आपको, दीज आर ऑल बहुत सारा फ्री क्वालिटेटिव डाटा सॉफ्टवेयर है। ये मैंने 2 सॉफ्टवेयर को रेड कर दिया बिकॉज मैंने इसमें कोशिश किया उसमें काम करने के लिए। नंबर 1 इज ए QDA MinerLite, मैंने आपको बताया, ये इनका 2 वर्जन है, फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। आप पेड वर्जन में बहुत सारा फीचर्स है, ओके, और फ्री वर्जन में आपको मैंने बताया मैक्सिमम हम टेबल बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज बना सकते हैं, और उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इसमें कर सकते हैं फ्री वर्जन में। बट जब हम पेड वर्जन वाला परचेज करेंगे उसका सब्सक्रिप्शन, उसी में आप इवन क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा करके उसी में ऑल क्वांटिटेटिव लाइक मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड, टी-टेस्ट जो भी आपको करना कर सकते हैं, वो फीचर उसी में अवेलेबल है। ओके, और एक जो मैंने बताया आपको कंप्यूटर एडेड टेक्सचुअल मार्कअप एंड एनालिसिस काटमा, ये भी इसमें भी मैंने काम करने के लिए कोशिश किया है, बट अभी तक उसको मैंने पूरा से सीख नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। आप भी कोशिश करिए इसको सीखने के लिए, बिकॉज ये कोई भी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आप सीखेंगे, ये आपके लिए एक लाइक
स्ट्रेंथ आपका का एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ओके, इसमें जो है, और इसका पेड वर्जन बहुत है, आप इसी में भी डिस्कशन भी हो गया आपका। पेड वर्जन वाला जो है उसमें, ये प्योरली पेड वर्जन है। इसमें कुछ देते हैं वो लोग स्टूडेंट, लाइक डेमो के लिए 10-15 डेज का ऐसे टाइम देते हैं, उसमें वो लोग करते हैं। नाउ आई विल डेमोन्स्ट्रेट आपको, इसमें थोड़ा ध्यान से आप लोग ध्यान में रहिए और जो स्टेप है उसको नोट डाउन करिए, जैसे आपको मदद होगा आप अपने से करने के लिए। ओके, नाउ हम डेमो दिखाएंगे आपको, इसमें हम कैसे काम करेंगे। ओके, ये जो मैंने बताया अभी तक क्वालिटेटिव जो माइनर लाइट सॉफ्टवेयर है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस एंड मिक्स डाटा एनालिसिस। इसी में हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं और रिपोर्ट भी बना सकते हैं। और ये जो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, इनिशियली इन 2004 में ये आया है, और इसका जो डेवलपर है प्रोवालिस रिसर्च, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोवालिस रिसर्च है, और ये कनाडा का कंपनी है। पहले तो ये पूरा फ्री करके रखा था, बट आजकल वो प्राइस, ये भी प्राइस लगा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जान गए, वो प्राइस लगा दिया। पर फिर भी आप डेमो वर्जन को लाइक इंस्टॉल करके उसको आप सीखिए, पहले सीखिए। इंस्टीट्यूशन तरफ से इसका सब्सक्रिप्शन भी आप कर सकते हैं, ज्यादा प्राइस नहीं है, अराउंड 20,000 में होता है, इसका प्राइस कम है। और उसी में भी आप एक बार सीखेंगे तो उसको सब्सक्रिप्शन करके भी आप उसको काम करेंगे इसमें। ओके, सो कुछ आइडिया क्यूडियो माइनर लाइट में हम जब जाएंगे, उसमें आप जो ओपन कर देंगे क्यूडियो माइनर लाइट, इसी में आपको मैं आई थिंक आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, प्लीज जस्ट फॉलो मी। हम उसको स्टॉप कर देता हूँ। ओके, जस्ट ए मिनट, शेयर माय स्क्रीन। ओके, शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो नाउ सपोज आपका पास से मैंने मैडम को दे दिया था, सपना मैडम को, जी वो एक लिंक आप लोग को दिया होगा, वो लिंक में आप लोग को लिंक को यूज करके वो सॉफ्टवेयर आपसे इंस्टॉल कर दीजिए। अभी वो फ्री जो डेमो वर्जन वाला है उसमें आप इंस्टॉल करिए आपका लैपटॉप में। एक बार आपका लैपटॉप में ये इंस्टॉल हो गया सॉफ्टवेयर, फिर आप उसको कैसे करेंगे। मेरा जो लैपटॉप है उसी में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अभी मैं वो सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें क्या है। ओके, और इसी से अभी देखिए इसको हम कैसे ओपन करेंगे। आपका जो सर्च बटन है आपका सिस्टम में, जो सर्च, ये आपका जो सिस्टम में ऑल प्रोग्राम्स है, और आपका सिस्टम में जो सर्च का ऑप्शन है, इसी में आप लिखिए QDA, में लिखा QDA। अभी मेरा आ गया। इज इट विजिबल? हेलो, यस, Yes, sir, visible. मैंने QDA लिख दिया, अभी तुरंत ये आ गया। ये इसका सिंबल आप देखिए, ये ओरिजिनल जो QDA होता है यही होता है, लाइट। ये जो पिक्चर है आप इसको याद रखिए, और मेरा सिस्टम में है, मैंने उसको सर्च में डाला, अभी वो तुरंत आ गया। सो मैं उसको ओपन करता हूँ। ओके, मैं जो ओपन करने के लिए कोशिश किया, इसी में भी देखा रहे अभी QDA माइनर लाइट का जो है 2 वर्जन है, यूज फ्री एडिशन और अपग्रेड। अपग्रेड मीन्स आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, उसका बाद में वो उसके बहुत सारा फीचर्स है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, मैंने भी आपके लिए, आप लोग जैसा है मेरा भी ऐसा है, मैं इसमें देखा है प्रोवालिस रिसर्च कनाडा का है, और इसको मैंने यूज द फ्री एडिशन मैंने क्लिक किया, यूज द फ्री एडिशन में। ओके, सो नाउ आपको क्या देखते हैं आपका स्क्रीन में, कोई भी बताइए। कुमुद मैडम बताइए, आपका स्क्रीन में क्या दिखता है आपको अभी? Sir, I'm still installing it. I'm sorry. I'll take नहीं, just 5 minutes. मैं जो दिखा रहा हूँ ना, आपको क्या दिखता Sir, है? वो तो plain है, it's blank. ओ, ये आप अभी मत करिए, आप इंस्टॉल करके रखिए, मैं Yeah, पहले yeah. डेमो करूंगा, आप उसको देखिए, स्टेप नोट डाउन करिए, और उसका बाद में आप ट्राई करिए। आई विल बी हियर ओनली, आई विल गाइड। Right, sir.
अभी आप करने से फिर यहाँ आप देखने नहीं पाएंगे, सुनेंगे भी नहीं है, वहां करते जाएंगे फिर कहाँ से नहीं होगा आपका। ओके, सो प्लीज सी ना, अभी हमको देखता है ये पूरा टॉप में आता है QDA माइनर लाइट 2.08, ये इनका वर्जन है। सो दैट मीन्स ये अभी QDA माइनर लाइट सॉफ्टवेयर है, ये पता चलता है क्योंकि इनका वो टॉप में पूरा लिखा है नाम। उसका बाद में आपका पास दो ऑप्शन है, यू सी द प्रोजेक्ट और यू से द हेल्प। हेल्प आपको इसका जो सॉफ्टवेयर है उसका जो हेल्प जो ऑप्शन है उसी में आपका कोई प्रॉब्लम यू आर फेसिंग और एनी डिफिकल्टी यू आर फेसिंग, कुछ मदद चाहिए, आप हेल्प में क्वेश्चन लिखेंगे, वो आंसर देंगे ऑटोमेटिकली। उनका उसको क्या बोलते हैं ना, वो ट्यूटोरियल है, ऑटोमेटिक ट्यूटोरियल है, वो आपको गाइड करेगा। बट हमको अभी हेल्प का जरूरत नहीं है, हम अभी प्रोजेक्ट में आपको शुरू करना है। सो एक बार आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, आप ओपन कर लिया, आपको ऐसा स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। सो देखिए आप प्रोजेक्ट में क्लिक करिए, एक बार आप प्रोजेक्ट में क्लिक करिए, बिकॉज प्रोजेक्ट मीन्स आपको टास्क है। प्रोजेक्ट का जो मीनिंग होता है, प्रोजेक्ट मीन्स टास्क। सो हियर प्रोजेक्ट मीन्स रिसर्च प्रोजेक्ट। सो नाउ you want to start a research project. You want to start a research project means you want to analyze the data for your research work or for your research project. So इसलिए आप क्लिक करिए ऑन प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट में क्लिक करिए। जो प्रोजेक्ट में क्लिक किया, इधर हो गया न्यू मीन्स आपको आप एक न्यू प्रोजेक्ट आप लोग जैसा है, मेरा पास तो है ऑलरेडी, बट आप लोग अभी शुरू करेंगे और न्यू में हम लोग शुरू करेंगे। न्यू आप क्लिक करेंगे, न्यू, उसी में न्यू प्रोजेक्ट आप करेंगे। हम ओपन, सपोज इसमें जो ओपन है, ओपन मीन्स क्या है ना, पहले आपका पास कोई प्रोजेक्ट आप बना के QDA लाइट में रखा है और उसको ना ओपन करेंगे। सो मेरा पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है मैंने जिसमें पहले एनालिसिस किया है, उसको हम ओपन करने के लिए चाहेंगे तो अभी ओपन यूज करेंगे, वो खुल जाएगा। बट आप लोग के लिए हम अभी जाए न्यू, यू क्लिक ऑन द न्यू, ठीक है। यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप विल बी आफ्टर प्रोजेक्ट, यू क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, ये जो पुल डाउन मेनू आ रहे और इसी में यू क्लिक ऑन द मेन न्यू। एक बार आप न्यू कर दिया, उसका बाद में ये डायलॉग बॉक्स आया। अभी एक बार आप कर दिया, इसी में दो आपका पास डायलॉग बॉक्स आ रहे। आप देखिए इसको, जो फर्स्ट डायलॉग बॉक्स है ऑप्शन है क्रिएट ए प्रोजेक्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इमेजेस। मैंने आपको बताया ये सॉफ्टवेयर में आप इमेज फोटोग्राफ एनालिसिस कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, ओके, इसको आप डाउन एनालिसिस कर सकते हैं। सो इसमें क्या होता है ना, क्रिएट ए प्रोजेक्ट, आपका पास डाटा है, आपका पास फोटोज है और उसको लेके आप एक प्रोजेक्ट अभी क्रिएट करेंगे, डाटा एनालिसिस शुरू करेंगे। सो और सेकंड का जो ऑप्शन है इंपोर्ट डाटा फाइल और फ्रॉम वेब सर्विस, ये जो सॉफ्टवेयर है देखिए कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है। उसको आप जब सब्सक्रिप्शन मिलेगा, सब्सक्रिप्शन वर्जन में ये जो सेकंड ऑप्शन होगा इंपोर्ट डाटा फ्रॉम वेब। सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, सोशियोलॉजी का है, मीडिया में कोई रिसर्च कर रहा है, जो मल्टी लाइक मास कम्युनिकेशन में कोई रिसर्च कर रहा है, वो स्टडी करना चाह रहे हैं अभी द नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट इज कमिंग इन द सोशल मीडिया। फेसबुक में जैसा जैसा सब एडवर्टाइजमेंट आ रहे, उसको स्टडी करना चाहेंगे, उसका इम्प्लीकेशन स्टडी करना चाहेंगे। नॉट ओनली फेसबुक, आप ईमेल में, सब आपका हमारा ईमेल में बहुत सारा मार्केटिंग आता है ईमेल। सो मैं रिसर्च करना चाहूंगा, हमारा ईमेल में जितना आ रहे हैं ना अभी जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, उसका पर चर्चा करूंगा और उसका पर एनालिसिस करके मुझे रिपोर्ट, एक पेपर बनाएंगे, रिसर्च पेपर बनाएंगे, वो कैसा कैसा रिसर्च आता है इसमें। सो इसके लिए आपको ये सेकंड ऑप्शन चूज करना है। वेब सर्विस में मे बी फ्रॉम इंटरनेट, मेल में आता है, फेसबुक में आएगा, लिंक्डइन ऑप्शन डाटा, लिंक्डइन में बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम में होता है, उसी में आप डाटा लेंगे, ये सेकंड ऑप्शन यूज करेंगे। और जो लास्ट ऑप्शन इसमें रखा है क्रिएट ए ब्लैंक प्रोजेक्ट, इसको अब मैं छोड़ देता हूं, ये इसको हम नहीं करेंगे, हम विल गो विद द सेकंड, फर्स्ट वन में। आप यू क्लिक ऑन द फर्स्ट, ओके, द फर्स्ट वन में मैंने क्लिक किया। सो फर्स्ट वन में क्लिक करने के बाद में ये अभी डायलॉग बॉक्स आ रहे, अभी ये
जो डायलॉग बॉक्स आ रहे, इसमें चाह रहे आपका डाटा कहाँ पर है, आपका पास जो डाटा हम अभी डॉक्यूमेंट लाएंगे, जो डॉक्यूमेंट मीन्स आपका डाटा है। सो इसी से मैं एक आपको बात बताऊंगा, जो ट्रांसक्रिप्शन आप डाटा किया है कंप्यूटर, ये जो सॉफ्टवेयर के लिए ईच सैंपल के लिए एक फाइल बनाइए, ईच सैंपल के लिए एक फाइल। आपका पास 20 सैंपल है, 20 वर्ड फाइल में आप उनको ट्रांसक्राइब करिए और उसको खोलिए, फिर जाके आप डाटा को इंपोर्ट यहाँ करेंगे और यहाँ हम डाटा एनालिसिस करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ये जो डायलॉग बॉक्स अभी आ रहा है, ये डायलॉग बॉक्स इज आस्किंग आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो फोटो है, वो कहाँ है अभी, व्हाट इज द सोर्स है। जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं, एसपीएसएस में लाते हैं, इंपोर्टिंग ना, इट्स सेम थिंग। ओके, मेरा जो डाटा है अभी, वो मैं अभी कहाँ रखा, वो डाटा को मैं कहाँ रखा। ओके, इसी में मेरा डाटा है, इसमें मेरे QDA का कुछ ऑपरे ये है, इसमें डाटा मुझे आएगा QDA। सो मेरा पास आपका जहां भी है, आप वहां QDA का डाटा, ओके आप देखिए अभी नाउ कैन यू सी, ये जो डाटा मेरा पास है अभी, मैंने क्लिक कर दिया, मेरा ये डाटा को मैंने क्या किया था, एक फोल्डर किया था, वो फोल्डर में इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, और सेम फोल्डर में जो टीचर लोग का जो रेस्पॉन्स है, ये जो डाटा मैं बताता हूँ आपको, मेरा पास देखिए 1 2 3 4 20 टीचर्स का डाटा है ये। 20 हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनाया था, उसी में अराउंड 20 क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन है ऑनलाइन टीचिंग ड्यूरिंग कोविड। हमारा एक स्टूडेंट है, ये मेरा डाटा नहीं है, मेरा एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट डिजिटेशन किया था कोविड का टाइम में, और उनका टॉपिक था चैलेंजेस फेस बाय टीचर्स ड्यूरिंग कोविड फॉर ऑनलाइन टीचिंग। तो इसके लिए हम लोग एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाया, वो इंटरव्यू शेड्यूल लेके वो जाके डाटा कलेक्शन करके लाए। वो डाटा कलेक्शन, आई शुड टेल यू दैट शी हैज कंडक्टेड ऑडियो इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू किया है, सब लोग को मोबाइल में फोन किया और उनका वॉइस को रिकॉर्ड किया, उसका बाद में वो अभी डाटा को ट्रांसक्राइब जो किया, इसी में जो डाटा है, टीचर 1 का डाटा एक जगह में रखा, टीचर 2 का डाटा लगा, इसमें जो डाटा है, इसमें आपको लगेगा, ये जो डाटा में आपको क्वेश्चन, जो हम क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है, इसको छोड़ के ऑन द टॉप में है द आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, लाइक टीचर का नाम क्या है, उनका क्लास कौन सा क्लास में पढ़ाते, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका सब्जेक्ट क्या है, ये सभी जो जनरल इंफॉर्मेशन जो होता है ना, वो भी है, और उसका फॉलोड बाई दो टीचर का जो रेस्पॉन्स है, वो सब है। अभी मेरा ये डाटा है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा बाई यू कैन यूज द शिफ्ट की, आप शिफ्ट की यूज करिए और इसको सबको सिलेक्ट करिए एक बार में, आप एक एक करके भी कर सकते हैं, मैं एक बार करता हूँ आपको पूरा। सो अभी पूरा सिलेक्ट हो गया, एक बार सिलेक्ट हो गया अभी डाटा, बिकॉज this is the data you want to analyze by using a QDM Analyte, or this is the data that you want to analyze। अभी ये डाटा सिलेक्ट हो गया, आप इधर देखिए, कैन यू सी दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, कैन एनीवन से, मेरा कर्सर जहां पर है क्या लिखा है इसमें, ऐड सर। हाँ एड साइड, आप लोग थोड़ा थोड़ा देखिए, ऐसे ये अभी ऐड लिखा है, आप इसी में क्लिक करिए, देखो क्लिक करने के बाद में वो जो मैंने सिलेक्ट किया था वो सभी इधर आ गया, नीचे आ गया, इसमें सब है, पूरा है, सब टीचर का डाटा इसमें है। उसका बाद में इफ यू कैन सी हियर क्रिएट,
हम यहाँ क्लिक करेंगे, अभी वो क्रिएट ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें दो डायलॉग बॉक्स दो आ रहे हैं। इंपोर्ट फाइल लोकेशन, फाइल लोकेशन मीन्स आप कहाँ से लिया है, इफ यू वांट फाइल लोकेशन भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट क्रिएशन डेट एंड टाइम, सो ये इट हैज नथिंग टू डू विथ आवर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, आप इसको छोड़ दीजिए अभी और इसको क्लिक करिए, ओके ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में वो मांग रहे अभी उसका एक ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, प्रोजेक्ट का एक नाम होना चाहिए। सो उसका मैंने सेज यूनिवर्सिटी नाम से दिया है और उसको सेव कर देंगे। अब ये प्रोसेस कर रहा है डाटा को, ये अभी डाटा इंपोर्ट हो रहा है। मैंने हम लोग जैसे एक्सेल से एसपीएस को डाटा लेते हैं, ऐसे डाटा अभी इंपोर्ट हो रहा है। एक एक करके सभी का डाटा इंपोर्ट होगा और इंपोर्ट होने के बाद में वो सब डाटा जो मैंने आपको दिखाया था, वो क्यूडीए माइनर लाइट जो सॉफ्टवेयर है उसी में अभी आ जाएगा। उसका बाद में हम लोग बाकी काम करेंगे। ओके, आप देखिए, इफ यू कैन सी, आप देखिए अभी मैंने आपको जैसे दिखाया था। कैन यू सी नाउ, व्हाट यू सी नाउ, एनीवन? हेलो, कैन यू सी समथिंग चेंज? Yes, sir. Yes, sir. It analyzes the audio number screen. Okay, now you see what you see now here. अभी हम पहले हमारा पास दो ओनली पूरा ब्लैंक था और उसी में ओनली प्रोजेक्ट एंड हेल्प था। अभी ये टॉप में क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा इसको? यहाँ से प्रोजेक्ट, उसके बाद में क्या है? हेलो, इज इट विजिबल टू यू? Cases. Cases, केसेस, वेरी गुड। देन नेक्स्ट, visibles, Variables. variables, वेरिएबल्स, वेरी गुड। देन codes, डॉक्यूमेंट, रिट्राइव, देन एनालाइज, राइट? सो ये देखिए अभी ये जो है ना, ये दीज आर द मेनू, ये जो है ना, दीज आर द थिंग्स यू कैन डू विद द क्यूडीए माइनर लाइट। मैं आपको ये जो पेज आप देख रहा है, दिस इज द विंडो, एक बड़ा विंडो है और ये इसी में बहुत सारा विंडो है। ये इसी में आपको लगता है इसमें एक ही है, बट इसमें बहुत सारा है। मैं आपको परिचय कराता हूँ इसी से। और ये जो पेज आप डाटा अब इंपोर्ट हो गया, आपको ऐसे देखेगा अभी। और इसी में देखा है, देखो टीचर वन का डाटा जो है फीमेल है, एज 30 है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, डेजिग्नेशन टीजीटी है, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल में पढ़ाते। और इनका जो ऑडियो हुआ था 33 मिनट्स का ऑडियो रिकॉर्डिंग हुआ था। डाटा कलेक्शन 25 मई 2021 में हुआ था। और ये जो ये है, ये पूरा क्वेश्चन है और उसका नीचे नीचे आंसर है। ये दिस इज ए डाटा ट्रांसक्रिप्शन। तो ये डाटा को ऐसे हर टीचर का है। ये एक टीचर है, सपोज हम टीचर 10 में क्लिक किया, टीचर ट्रेन आ गया। कैन यू सी नाउ, देखो ट्रेन आ गया। ये 10 का टीचर नंबर 10 का डाटा है इसमें। सपोज हम 11 में क्लिक करें, टीचर 11 का डाटा आ गया पूरा। सो ये जो आप देखते हैं ना, इसने जो बड़ा पोर्शन है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये जो बड़ा पोर्शन है उसको आप बोलते हैं, नोट डाउन करिए, दिस पोर्शन इज नोन एज डॉक्यूमेंट विंडो। विंडो आपको समझ में आएगा, विंडो। तो ये जो बड़ा पोर्शन है, पोर्शन इसमें जो है ये है ये डॉक्यूमेंट विंडो। इसी में डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा कौन सा डाटा है जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं। हुए हो गया, दिस इज ए डॉक्यूमेंट विंडो। इसी में आप देखिए ना, इसमें कुछ लिखा है ना, ये केसेस मीन्स हियर आपके लिए सैंपल है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। सो इसलिए इधर टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3। सो ये जो पोर्शन मैंने लिखा है, इसमें जो पोर्शन लिखा है, ये इसमें केसेस है, ऑल केसेस आर हियर। यू सी ऑल केसेस आर हियर।
तो ये जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं केस विंडो। यू कैन नोट डाउन, दिस पोर्शन इज ए केस विंडो, दिस पोर्शन ओनली फ्रॉम दिस टू this side, this area is case window. ओके, देन हम ऐसे क्लिक किया, देन नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल्स। सो फिर ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज वेरिएबल विंडो। इसमें वेरिएबल का बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप कोई वेरिएबल ऐड करेंगे, इसमें कोई वेरिएबल अभी ऐड नहीं हुआ क्योंकि हम काम शुरू नहीं किया, तो इसमें ये है वेरिएबल विंडो है। तो इसी में मिनिमाइज मैक्सिमाइज इसका है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। उसका बाद में ये एक विंडो है, इसको हम बोलते हैं कोड विंडो। ये वाला जो है, ये वाला जो है कोड विंडो, लिखिए ये साइड पूरा है, इसको बोलते हैं हम कोड विंडो। सो ये विंडो आपका पास देखिए, एक जगह में बहुत सारा चीज आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए सब चीज को आपको पता होना चाहिए। इससे डॉक्यूमेंट विंडो जाके आपको डाटा मिलेगा, इसमें आपको कोड लिखेगा, इसी में आपको वेरिएबल लिखेगा, इसी में आपको केसेस लिखेगा। ये विंडो सब है। और उसका बाद में मैंने आपको बताया था केसेस है, केसेस मीन्स द सैंपल, इसका बारे में इंफॉर्मेशन इसी में है, केस विंडो। वेरिएबल में वेरिएबल का बारे में लिखेगा, और ये कोड्स का बारे में यहाँ मिलेगा। डॉक्यूमेंट ये हमारा है। रिट्राइव का कुछ ऑप्शन है, हमको बाद में बताएंगे। और ये एनालाइज इज द मेन चीज जिसको आप यूज करके आपका एंटायर डाटा को हम एनालाइज करेंगे। ओके, अभी इसका फेमिलियरिटी आपको हो गया। अभी ये क्यूडीएम माइनरलाइट में बहुत सारा विंडोज है, बहुत सारा प्लेस है जहां से आपको काम करना पड़ेगा। मैंने वेरी क्विकली हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे, आप नोट करते जाइए और उसी में आप प्रैक्टिस करिए। नहीं होगा तो वीडियो देखिए, वो आपको होगा। ओके, नाउ लेट अस सी दो इसका ये डाटा इंपोर्ट होने का बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो हमको वेरिएबल को वेरिएबल विंडो में काम करना पड़ेगा। सो वेरिएबल विंडो आप इधर, इसीलिए आपको यहाँ क्लिक करिए। ये वेरिएबल विंडो आ गया। अभी वेरिएबल में क्या लिखा है, टीचर नंबर 6। ये टीचर नंबर 6 का डाटा है, इसलिए टीचर नंबर 6 है। सपोज हम चले अभी टीचर नंबर 1 का पास, टीचर नंबर 1 का पास हम चलेंगे और 1 से शुरू करेंगे। इधर लिखा है टीचर नंबर 1। सपोज आप टीचर नंबर 1 लेके आप लिखेंगे, किसका नाम लिख देंगे। सपोज व्हेन यू कलेक्ट डाटा, आप किसका नाम लिख देंगे। टीचर नंबर 1 छोड़ के आप किसका नाम में भी फाइल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो डॉक्यूमेंट है, फाइल है इसलिए डॉक्यूमेंट है, ये बाय डिफॉल्ट आ गया। ये बाय डिफॉल्ट अभी ले लिया, बिकॉज टीचर नंबर 1 का नाम है, फाइल का नाम है, और विंडो इज ए वर्ड फाइल, इसलिए विंडो आ गया। अभी हमको और ज्यादा वेरिएबल ऐड करना है, बिकॉज यहाँ बहुत सारा वेरिएबल है। ये सब वेरिएबल को हमको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। सो हमको वेरिएबल को कैसे ऐड करें। सो इफ आई क्लिक हियर, यू प्लीज सी, हम अभी न्यू वेरिएबल, और हमारा रिसर्च हिसाब से जो वेरिएबल हम उसमें कैसे ऐड करेंगे। सो इसीलिए आप इधर लगाइए वेरिएबल्स, क्लिक ऑन वेरिएबल्स। उसका बाद में लिखता है वी वांट टू ऐड द वेरिएबल नाम। ठीक है, कैन यू, Yes, sir. यस, हाँ यस। अभी हम वेरिएबल ऐड करेंगे, मैं एक का करके दिखाता हूँ और बाकी आप करेंगे। सो आप ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। सपोज हम वेरिएबल अभी ऐड करेंगे। कुछ हमारा पास जो वेरिएबल है, सपोज वेरिएबल का नेम मैंने दे दिया है जेंडर। सो डिस्क्रिप्शन हमें लिख दिया अभी जेंडर ऑफ टीचर्स। ये डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट इज दैट जेंडर नेम ऑफ द वेरिएबल इज द जेंडर। डाटा टाइप का हमारा पास जो होता है ना, एक न्यूमेरिक डाटा होता है और एक ये होता है स्ट्रिंग डाटा होता है। वर्ड में आप लिख देते, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। तो इसी में बहुत सारा फॉर्मेट है,
मैं यूज करता हूँ शॉर्ट स्ट्रिंग, हमका डाटा है शॉर्ट स्ट्रिंग, ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास सेकंड वेरिएबल सॉरी डेजिग्नेशन, सेकंड वेरिएबल है डेजिग्नेशन। मैंने बताया इसका डेजिग्नेशन को हम भी शॉर्ट स्ट्रिंग कर देंगे और इसमें लिखेंगे सब डेजिग्नेशन में हम ऐड कर दिया लाइक PRT TGT, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपका फॉर योर फॉर अंडरस्टैंडिंग PGT आप ऐड कर दीजिए। ओके, इस लाइक सब्जेक्ट हम लिखेंगे, टीचर का जो सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट लिख दीजिए, इसको हम भी कर देंगे शॉर्ट स्ट्रिंग ऐड। 3 वेरिएबल ऐड कर दिया है और उसी में ऐड कर दिया है हम क्रिएट, लेट इसमें क्रिएट कर दीजिए। ओके, देखो आप इधर देखिए वेरिएबल में, इधर वेरिएबल विंडो में आप अभी देखिए, ये वेरिएबल विंडो में आपको दिखाई देता है अभी ये सब वेरिएबल पहले नहीं था और डेजिग्नेशन आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया। सो ये अभी कर दिया बट अभी डाटा एंट्री नहीं हुआ। सो आप जितना सैंपल ले उसी का डाटा यहाँ भरेंगे। सपोज ये जो टीचर नंबर 1 इनका जेंडर है फीमेल, सो आप इधर लिख देंगे फीमेल, इसको ओनली ऐड कर दीजिए, ये रहेगा। उसका बाद में उनका डेजिग्नेशन है ये TGT, अब जैसे लिखिए TGT, इनका सब्जेक्ट है इंग्लिश ENG। सो इसका अभी नेक्स्ट टीचर को चलिए, टीचर नंबर 10 का आ रहे हैं अभी, टीचर का जेंडर भी वही है फीमेल, फीमेल आ गया। इनका जो डेजिग्नेशन है PGT है, इनका जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, ऐसे ऐड कर दी। देन यू गो टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट टीचर इज 11, 11 का ये है, लिख दीजिए। ये जो है अभी है, सब्जेक्ट है EVS है। So anybody, are you following? You please note down, okay? Okay. So ये ऐसे करके आप हर टीचर का ये जो है ना, ये इसको आप ओके। ये होने का बाद में अभी हमारा पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा पास जो है वो है कोड। अभी कोडिंग करना है, सबसे 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 जरूरत है और सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी कोडिंग हमको करना है। और मैंने आपको बताया था कोडिंग करने के लिए हमको पहले लाइन बाय लाइन रीडिंग करना पड़ेगा, उसका बाद में हमको कोडिंग करना पड़ेगा। कोडिंग एंड कैटेगराइजिंग दोनों साथ में होगा, साथ साथ में होता है कोडिंग एंड कैटेगराइजिंग, ये दोनों साथ में चलता है। ओके, मैं देखेंगे, अभी मैं पढ़ता हूँ उसको, उसका बाद में हम लोग कोडिंग करेंगे। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने सपोज इसको टीचर नंबर 1 से लाया। टीचर नंबर 1 को जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो पैंडेमिक शुरू हुआ, वो पैंडेमिक शुरू में व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एट द बिगिनिंग ऑफ पैंडेमिक। पैंडेमिक जो शुरू हो गया उसका बाद में आप ये डाटा कलेक्टेड फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय एंड KVS बताया ऑनलाइन में क्लास लीजिए। पहले कभी ये लोग ऑनलाइन में क्लास नहीं लिया, सो इसीलिए वो क्लास लेना शुरू करिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो बिगिनिंग में पैंडेमिक में जो KVS आपको बोला आप क्लास लेने लीजिए, फिल व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल एट द बिगिनिंग ऑफ द का जो बिगिनिंग में ये कैसा आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। ये जो टीचर लिखा क्या है देखो, इनिशियली आई हैड लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड डाउट्स about how to shift from offline mode at the beginning of the pandemic. So I was fully confident. I was not fully confident online teaching, but we had just one aim, that there should not be any gap created in student education due to this.
सो ग्रेजुअली आई ट्राई टू एक्सप्लोर द वे। ना मैंने आपको बताया था आपको ये पढ़ना है और पढ़ के इसको सेगमेंटिंग करना है। सेगमेंटिंग मीन ये जो तीन तीन लाइन लिखा है इसमें, ये तीन लाइन से आपको इम्पोर्टेंट है, आपका रिसर्च के लिए कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको आप सेगमेंटिंग करना पड़ेगा और उसको आप आइडिया पड़ेगा ये। ओके, सो इसको पढ़ने, इसको हम कोड करेंगे। कोड में आप कोड करना चाहेंगे तो आप इसमें देखिए कोड, इसमें क्या देखा था, ऐड कोड। कोड आर्न करने के लिए, ऐड करने के लिए बुलाते हैं। अभी क्लिक ऑन द ऐड, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कोड का इसे आता है, ये डायलॉग बॉक्स में आपको फिलअप करना है कोड का नेम क्या होगा, कोड का कैटेगरीज किस में आएगा, और इसमें इसके कॉलर देता है इसमें आपको, बिकॉज आपका पास बहुत सारा कोड होगा, बहुत सारा सेगमेंट होगा, सो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक ईच कोड का कोई दूसरा कलर मिलेगा। ओके ओके, हम क्या करें अभी, हम कैटेगरीज, अभी मेरा जो कैटेगरीज है कॉन्फिडेंस लेवल, मैंने ऐसे सोच के दिया है कि कॉन्फिडेंस लेवल। आप इसको और कुछ नाम भी दे सकते हैं। इट इज, दिस इज द सब्जेक्टिव डिसीजन ऑफ द रिसर्चर। आप इसको कोई भी नाम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक कोड बनाने के लिए कोशिश किया, क्या कोड होगा, जे कॉन्फिडेंस, कर दिया, एक कोड हो गया। सेकंड कोड मैंने बनाया, नॉट, सेकंड कोड में ये कॉन्फिडेंट नहीं है। ये जो कंफ्यूज्ड है ऑनलाइन क्लास के लिए, वो कंफ्यूज है। मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया, इसका चेंज कर देता हूँ। तो ये कंफ्यूज्ड है। ओके, सो ये मैंने एक ही कैटेगरीज बनाया, उसका बाद में 3 कोडिंग मैंने दिया है उसको। और हम डाटा जो एनालिसिस करेंगे, आपको पता होगा क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस एक जगह में होके खत्म होता है, ऐसे नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलता है जब तक आपको रिसर्च पूरा कंप्लीट नहीं होता है। ओके, सो इसीलिए मैं आपको इतना को मैं दिखाता हूँ अभी क्या उसको हम कर सकते हैं, इसमें कैसे काम। ओके ओके, अभी आप इसको भी ध्यान से आप देखिए। कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल में फर्स्ट हो गया कॉन्फिडेंस लेवल। मैंने आपको पढ़ा, इनिशियली आई हैड लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड डाउट्स अबाउट हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन एट द बिगिनिंग। सो ये जो पॉइंट है, मेरे फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो मैंने सिलेक्ट किया और इसी में वर्ड था, इसलिए मैंने इसको, आप देखिए अभी, अब देखिए मैंने इसको डबल क्लिक किया और यहाँ कंफ्यूज हो गया। इसी में देखिए ये जो कोड हो गया, अभी ये जो इतना जो लाइन हाईलाइट हुआ, ये जो हाईलाइटेड लाइन है उसका वो, दैट इज एग्जांपल ऑफ सेगमेंट। ये जो लाइन है, दिस इज एग्जांपल ऑफ ए सेगमेंट। और ये जो है कंफ्यूज हो गया, ये है कोडिंग मैंने दिया, इसमें कंफ्यूज कर दिया, टीचर्स इज कंफ्यूज। ओके, देन सपोज हम दूसरा एक टीचर को चलेंगे, टीचर नंबर 10, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट, आप इसको पढ़िए के बाद में ये बताया, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट टीचिंग, आई वाज एप्रेहेंसिव। सो इसलिए आप इसको सिलेक्ट करिए, ये तो नॉट कॉन्फिडेंट, मैंने इसलिए रखा है इसको, ये कॉन्फिडेंट नहीं है। आप देखिए इसमें कलर भी चेंज हो गया, नॉट कॉन्फिडेंट। सो ये जो लाइन हाईलाइट हुआ है, दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स अभी पूरा लाइन में आपको, बाकी इंटरेस्टिंग आपके लिए नहीं है, आपके लिए इंटरेस्टिंग है जो पॉइंट आपको आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव चाहिए, उसको आप करिए। लेट अस गो टू द नेक्स्ट।
सेकेंड जो 11 टीचर, आई वाज रियली कॉन्फिडेंट अबाउट ऑनलाइन क्लास एज आई एम फ्रॉम टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर साइंस का कोई टीचर है, ये बता दिया आई वाज कॉन्फिडेंट। सो हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, ये वाज कॉन्फिडेंट। अब क्लिक करिए, इसका भी रेड हो गया। सो ये सेगमेंट है और ये है लाइक ये कोड है। ये साइड में जो स्पेस है इसको बोलते कोड विंडो। So teacher number 12, I was confident enough. I am well aware about it and I belong to this stream. ये कंप्यूटर साइंस का है, so इसीलिए I was acquainted with it. So ये भी confident है, अब इसको confident मार दिया। So ऐसे करके now ये जो टीचर नंबर 13 बोलता है, initially I had no idea about how teaching. There are a lot of platforms है ना, but ये जो कोड कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है, ये कोड हम क्या करेंगे? कोड आप इसी जो वर्ड है इसी में आपको उठाना है। सो इसी में वो बोलता है आई वाज नॉट क्लियर अबाउट, ये कंफ्यूजन वर्ड इसमें है, मैंने इसलिए इसको कर दिया, ये कंफ्यूज्ड है। सो ऐसे ऐसे करके आप पूरा कोडिंग, आपको पूरा कोडिंग करना है। सो एनीबॉडी वांट टू, अजी कंफ्यूज नाउ? हेलो एनीवन? ये कोडिंग कैसे हो रहा है आपको पता चल रहा है ना, नहीं चल रहा? ये सब पता चल रहा है सर। वेरी, आप उसको रखिए। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ ना, ये मैंने आपको बताया, मैंने अभी ये केस जो फाइल है, केसेस में जो आपका जितना डाटा यहाँ आ गया, अभी वेरिएबल में मैंने आपको दिखाया ये वेरिएबल आप कैसे चेंज करेंगे, और कोड में भी मैंने दिखाया आपको कैसे कैसे कोड करना है। सो इसको मैंने अभी क्या करता हूँ ना, इसको मैं और एक करता हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी पूरा एक काम हुआ जहां से मैंने काम किया थे, उसको हम दिखाएंगे आपको, बिकॉज अभी टाइम नहीं है सभी को कोड करने के लिए, अभी टाइम लगेगा 1-2 घंटा। अभी इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलरेडी डाटा में हम लोग काम किया है उसी में हम दिखाएंगे आपको। जस्ट मिनट, आई एम ओपनिंग ए लाइक जिसमें मैंने कोड पूरा कर दिया, इसलिए उसको प्रियंबदा का डाटा इसमें कुछ नहीं है। ओके, ये सेम डाटा है मैंने, बट इसी में हम लोग काम किया है, ये जिसमें काम किया आपको देखने बहुत अच्छा लगेगा। सेम डाटा है, ये टीचर जो है सेम 20 टीचर्स इसमें है। केस विंडो में आप देखिए पूरा फुल है, और उसका बाद में आप वेरिएबल विंडो में देखिए पूरा फुल है, ये मेल फीमेल सब है, पीजीटी एक्सपीरियंस डेजिग्नेशन पूरा लिखा है इसमें। ओके, वेरिएबल भी फुल है। और आपको और अच्छा लगेगा, ये कोडिंग में आप देखिए, कॉन्फिडेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक एक कैटेगरी है, उसका अंदर में ये सब कोडिंग है। ऑनलाइन क्लासेस ये भी सब कोडिंग है। सो इसी में हम लोग पूरा कोशिश किया उसको करने के लिए। ये देखो, ये देखिए आपको कितना कोड एंड कैटेगरीज हम लोग डेवलप किया है इसको करने के लिए। देखिए काम हुआ है, पूरा काम हुआ है। ओके, सो ऐसे मैंने जैसे आपको बताया, आप ऐसे ऐसे करेंगे तो और आपका कोड पूरा ऐसे बनेगा। कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कोड को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, उसको प्रिंट करके कोड को एडिटिंग भी आप कर सकते हैं। सपोज कोई कोड आप किया है और आपको लगता है ये कोड गलत हो गया, आप उसको एडिटिंग का वर्जन भी है, आप उसको एडिटिंग करेंगे। सपोज हम इसमें ये कोड में इसी में क्लिक
एडिट आ गया, एडिट वर्जन आ गया। एडिट वर्जन में हम जो कुछ कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग, आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। और इसी में जो आप जो देख रहा है, इसमें ये विंडो में देखिए कुछ लाइन क्या है ना, हाईलाइटेड है। दिस लाइन आई से दिस इज द सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है पूरा डाटा में देखिए सेगमेंट है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बाकी जो लाइन ऐसे तो लोग बोलते बहुत सारा, आप जो इंटरव्यू करेंगे वो बहुत सारा बहुत कुछ आपको बोलेंगे, हमको ये है बहुत कुछ बोलेंगे। दीज आर नॉट इंटरेस्टेड टू, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट टू यू। सो इसीलिए आप ध्यान नहीं देंगे। तो आप किसी में ध्यान देंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसी में आप ध्यान देंगे। सो इसीलिए ये कुडियो माइनरलाइट में आप काम करेंगे। देखिए ये जो है, ये साइड में देखिए, दीज आर द डिफरेंट विंडो। ये कोड है सब, ये विंडो है, जितना कोड लिखा ये पूरा इसमें आप देखिए ना। एक बार मैंने इसके ऊपर रख दिया, इसमें आ रहे पूरा डिटेल आ रहे, अवेलेबल और अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइस, कैटेगरीज है, कोड है, डिजिटल डिवाइस, एडमिन कौन है, वो भी कौन बनाया वो भी देखता है। सो ऐसे ऐसे आपको पूरा कोडिंग अभी हो गया। कोडिंग होने के बाद में अभी आपका कोडिंग हो गया, अभी फाइनल स्टेज है ये फ्री वर्जन में, जो आप कैसे टेबल बनाएंगे और कैसे आपको ग्राफ बनाएंगे, ये इसमें हम फाइनल स्टेप बाद में आपका सिस्टम में आप उसको करिए। और मैं आई विल बी ऑनलाइन, आपको जो प्रॉब्लम होगा मुझे बताइए, हम यहाँ से आपको हेल्प करेंगे कैसे वर्क करना है। ओके, तो फाइनल स्टेप ये सब करने के बाद में पूरा कोडिंग होगा, एंटायर डाटा कोडिंग है मेरा। ये डाटा में भी सभी टीचर का कोडिंग मैंने भी नहीं कर पाया, उसको टाइम लगेगा। और मैं जितना भी मैं किया 10 लोग का शायद मैंने किया इसमें। सो नाउ विल गो टू एनालाइज। इफ यू क्लिक ऑन एनालाइज, इसमें देखिए ओनली यही है, कोडिंग फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल। इसमें जो है ना कोडिंग फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल, और बाकी जो सब है स्टैटिस्टिक्स है, कंटेंट एनालिसिस है, वो सब इसमें नहीं है, बिकॉज फ्री वर्जन में ये सब अवेलेबल नहीं है। आप सब्सक्रिप्शन करेंगे तो इसमें बहुत सारा आपको मिलेगा। बट मैंने आपको जैसे बताया, रिपोर्ट में आपका टेबल ग्राफ का इंतजाम चाहिए, कलरफुल ग्राफ चाहिए, इसमें हम करेंगे। ओके, कोडिंग फ्रीक्वेंसी फ्रीली अवेलेबल है, बट आप सब्सक्रिप्शन में सब कुछ चाहिए। ओके, क्लिक ऑन कोडिंग फ्रीक्वेंसी। इफ यू क्लिक ऑन कोडिंग फ्रीक्वेंसी, अब ये डायलॉग बॉक्स अभी आ रहे हैं। सो ये डायलॉग बॉक्स में आपको सर्च इन द डॉक्यूमेंट। सर्च इन डॉक्यूमेंट मीन्स हमारा वही जो डॉक्यूमेंट है, 20 डॉक्यूमेंट मैंने आप लोग के यहाँ से लाया है, टेकन फ्रॉम टीचर्स, वही डॉक्यूमेंट है, उसको छोड़िए। अभी हम इसमें सपोज हम ग्राफ बनाएंगे, एक एक ग्राफ बनाना चाहेंगे, एक टेबल बनाना चाहेंगे। इसमें आप क्लिक करिए, इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज कंफ्यूजन कितना लोग है, कितना लोग का डाउट है, कितना लोग ग्रेजुअली डेवलप किया है, लोग इतना मैंने दिया है। ओके, सो फिर जाके उसको हम सर्च कर लिया। अभी ये है, अभी टेबल आपका बन गया है, दिस इज द टेबल हो गया। कैटेगरीज एक ही कैटेगरीज है, ये कोड है। कितना जितना टीचर है उसी में 7 लोग बोलते दे आर कंफ्यूजन एंड डाउट्स, और उसको दिस इज ए फ्रीक्वेंसी काउंट, और उसका परसेंटेज बता दिया है 35%। 35% ऑफ टीचर बोलते हैं दे आर कंफ्यूज, दे आर डाउटफुल एट द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक अबाउट ऑनलाइन टीचिंग। ओनली 15% टीचर बोलते हैं दे आर फुली कॉन्फिडेंट। वो कंप्यूटर टीचर जो है दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर आवर ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो इसीलिए वो बोलते हैं 50। और ग्रेजुअली डेवलप टीचर ऐसे बोलते हैं 5% है, वो बोले हम ग्रेजुअली हम लोग कॉन्फिडेंस आया हमारा। लो कॉन्फिडेंस में आता है 30% ऑफ टीचर दे से वी आर लो कॉन्फिडेंस। सो ऐसे ये टेबल बनेगा, ये टेबल आप बना, ये टेबल को आप पूरा आपका जो भी है उसमें दे सकते हैं। ये होने के बाद में ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है। ये टेबल होने के बाद में सपोज आप एक ग्राफ बनाएंगे, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले ग्राफ, और हमारा पास इसमें ऑप्शन है, यू सी हियर इज ए ऑप्शन चार्ट सिलेक्टेड, इधर बनाइए, क्लिक करिए। ये देखिए
ये बार ग्राफ हो गया। ये बार ग्राफ में बता, ये इसमें आप उसको पूरा कॉपी करके डाउनलोड करके उसको आप जमा कर सकते हैं। ओके, अब ऐसे भी ग्राफ आपको मिलेगा और आपका पास ऐसे भी ग्राफ मिलेगा। तो ये जो फैसिलिटीज है ऑफ कोर्स इसमें कौन मैंने फ्री वर्जन में, बट इसी में भी बहुत है, बट बिकॉज एज ए क्वालिटेटिव रिसर्च और डाटा इंटरव्यू डाटा नहीं कर पाता, उसका ग्राफ नहीं बनाता, बट ये आपको अभी आपको यूज करेंगे तो इसमें टेबल ग्राफ ये करेंगे, उसका बाद में आप एक्सप्लेनेशन करिए, इतना परसेंटेज इतना परसेंट वो आप करते आगे चलिए। कोई भी इतना फ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ है जिसमें आप इसको करा पाएंगे। सपोज मैंने और एक बार और कुछ दिखाना चाहूंगा। इस यू गो ऑन एनालाइज, क्लिक ऑन एनालाइज, क्लिक ऑन कोडिंग फ्रीक्वेंसी। फिर मुझे ये सब नहीं चाहिए। सपोज आई वांट टू डू समथिंग एल्स। हमारा एक क्वेश्चन था, आपको कितना टाइम लगा टू डेवलप योर कॉन्फिडेंट और टू लर्न अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। तो इसी में हमारा 1 मंथ लिखा, 1 वीक लिखा, 2 मंथ लिखा, 2 वीक्स भी लिखा। सो इसी में हम लोग आई वांट टू सी इसमें कैसे ये लोग रेस्पॉन्स दिया है। सो ये जो देखते आप नाउ, ये दिस इज नोन एज ट्री टेबल, इसका हम बोलते हैं। हम टेबल को जाइए, टेबल को आप ये टेबल में आपको लगता है कितना लगा 1 मंथ 15% टीचर दे टुक 1 मंथ टू लर्न, 20% टीचर दे टुक 1 वीक टू लर्न, 10% टीचर दे टुक 2 मंथ टू। ये आपका डाटा जो कोड था वो क्वांटिफाई हो गया। आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ आप बनाएंगे तो देखो ये ग्राफ हो गया, तो ये ग्राफ भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे आपको स्टार्टिंग विथ यू नो मेकिंग कोड्स, उसका बाद में एनालाइज, आपका टेबल बनाइए, आप फ्रीक्वेंसी करिए, ये आप दिखा सकते हैं। सो आपका पास पूरा अवेलेबल है, डाटा है। आपको ईच क्वेश्चन के लिए आप आपका ग्राफ एंड टेबल आप बनाइए, उसको प्रेजेंट करिए, लिखते जाइए। सो मैं अभी क्या चाहता हूँ ना, इसमें मेरा डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो गया, बट आई विल बी देयर। आई वांट एवरीबॉडी, आपकी आप लोग का किसी का पास डाटा है, आपका पास कुछ? हेलो हेलो। Yes, sir, you are audible. हाँ नहीं, मैं सोच रहा हूँ अभी कि आप लोग का पास डाटा है क्या? कुछ डाटा होने से, डाटा किसका पास? आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ डाटा चाहिए। सो डाटा होने से मैं आपको, ओके मैडम, उनका आपका पास कोई ग्रुप है क्या? Yes, sir. आपका पास ग्रुप है? Yes, sir. फिर मैं आपको कुछ डाटा अभी हूँ, आप उनका ग्रुप में शेयर कर दीजिए। Okay, sir. उसको शेयर कर दीजिए। और ये कैसे आ रही है? ओके, मैं आपको कुछ डाटा शेयर करता हूँ और उसी में आप इसको सब लोग को शेयर कर दीजिए, और वो लोग ऐसे कुछ करेंगे अभी। Okay, sir. तो वो लोग करेंगे और उसको किसको कुछ आइडिया मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम है तो दैट आई विल टेल यू। पार्टिसिपेंट्स, आपके पास अगर कोई डाटा आपका खुद का अवेलेबल हो और सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ इससे रिलेटेड एनालिसिस पार्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने स्क्रीन शेयर करके सर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मीनवाइल जिनके पास नहीं है, आई एम शेयरिंग डाटा। मैडम ये जो 6 स्टूडेंट है, मैडम आप इसको शेयर कर दीजिए आपका ग्रुप में। और आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू, आप लोग पार्टिसिपेट इसमें करिए। और इसमें जो डिस्कशन हो रहा है ना, इसमें कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, हम आई विल बी हियर, बट आई वांट ये जो जिसका पास डाटा है वो भी आप वो जो क्यूडीएम एनालाइट को ओपन करिए, आपका डाटा उसमें इंपोर्ट करिए
और उसका बाद में मैंने आपको जैसे बताया वेरिएबल ऐड करिए और आप कोडिंग क्रिएट करिए, एटलीस्ट 2-3 कैटेगरीज के लिए कोडिंग बनाइए। और उसका बाद में कोडिंग करने का बाद में आप लोग डाटा एनालिसिस फ्रीक्वेंसी, ये जो टेबल मैंने देखा है उसको भी आप करिए। हमारा पास अनदर ऑलमोस्ट 25 मिनट्स। सो ये 25 मिनट्स में आप आपने दिखाइए, उसका बाद में विल कंक्लूड द सेशन। और कोई भी प्रॉब्लम इशू है, आई विल बी हियर, हम आपको बात करेंगे। और जिस लोगों का पास डाटा है आप काम शुरू करिए, और जिसका डाटा नहीं है वो मैडम आपको भी डाटा शेयर करेंगे। मैंने मैडम को डाटा शेयर कर दिया, और वो डाटा को आप यूज करिए, बट करके आप दिखाइए। ओके, इज माई पॉइंट क्लियर? समझ में आया सब लोग को? कोई है मैडम? जी सर। सर आई एम जस्ट शेयरिंग द डाटा। शेयर करिए ना, ये पार्टिसिपेंट तो सो गए सब लोग। Dear ये participants, please be interactive. Then only you will gain at most. Rashmi ma'am, do you have any data with you? Okay, okay. Yeah, I have just shared 2 files. Remaining I am sharing, no? There is network issue in downloading. No, Kannada नहीं है। मैं सोचा करो ऑडियो पर चलिए। मैडम आई एम हियर एक्चुअली, Yes, sir. प्लीज स्टार्ट sir. वर्किंग। और किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। जी सर। हाँ। Sir, there is one question in the chat box. यस मैडम। Gitanjali Pandey wants to know whether this tools can be used to analyze the spectral graph image. हाँ, यस इट कैन बी डन द सेम वे, द वे मैंने आपको बताया ना, वो इंपोर्ट किया वर्ड डॉक्यूमेंट। But I guess she is having quantitative data with her. नहीं, क्वांटिटेटिव डाटा ओनली फॉर क्वालिटेटिव डाटा, जहां से आपको फोटोग्राफ आना, जहां से आपको वर्ड पैराग्राफ एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस के लिए हमारा पास तो SPSS है सबसे अच्छा जो क्वांटिटेटिव, तो उसी में आपको करना पड़ेगा। ये क्वालिटेटिव के लिए है। उनका जो क्वेश्चन है, इफ इट इज इमेज कैन बी एनालाइज। आप भी कोशिश करिए, आपका घर में टाइम नहीं हुआ अभी, क्योंकि आप उसको, आपका जो भी इमेज है उसको आप उसको इंपोर्ट करिए, आपका उसमें ऑटोमेटिक आप कोडिंग कर, उसको भी कोड करिए। इमेज में क्या होता है, आपका पास इमेज वेराइटी डायमेंशन है, एंगल है, वेराइटी डायमेंशन और एंगल है, वो एंगल को आप कोडिंग करेंगे। मैं कल कोशिश किया था कुछ फोटोग्राफ को, आपका एक फोटोग्राफ में बहुत सारा चीज है। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड क्या है, फोटोग्राफ का, सपोज क्लास का फोटो ले लिया, स्टूडेंट का पोजीशन क्या था उसको कोडिंग करना चाहिए, टीचर का पोजीशन क्या था उसको कोडिंग करना चाहिए। सो ये इसमें भी जैसे मैंने कोडिंग किया है, वहां भी तो अभी कर सकते हैं।
कितना स्लो नेटवर्क चल रहा है, नेटवर्क स्लो है। गीतांजलि मैडम, आप थोड़ा बताइए ना मुझे, ये जो ग्राफ का आप जो इमेज बता रहे हैं ना, वो इमेज क्या है? मुझे समझ नहीं आया। ये स्पेक्ट्रल जो ग्राफ है उसमें क्या इमेज, कैसा इमेज मिलता है मैडम? गीतांजलि मैम, sir, there is lot of network issue. I am trying to send the files in the group, but नहीं, ये जो मैडम अभी पूछा ना, वो गीतांजलि, वो कहाँ है? वो चले गए कहाँ से? बेटी का बर्थडे है ना। Gitanjali ma'am, can you hear us?
हेलो, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है सारा डाटा। प्लीज आप Sir, I have प्रैक्टिस करिए। sir, I have a question. हेलो, प्लीज प्लीज बताइए। अरे अनूप अनूप कुमार प्लीज बताइए। अनूप कुमार, Sir, am I audible? यस। Yeah, am I asking if I have a audio of a telephonic interview, then can this software also transcribe, or do I have to? I need to have a manually do it. नहीं, this software is to analyze the data. It cannot transcribe. You have to Okay. like other applications are there that can help you to transcribe. This Oh. cannot transcribe. Only you have to, once you transcribe, it can analyze. Okay. And sir, what is the difference between data analyzing and data processing? Data processing start with like, once you collect your data, then your data processing started. Like, you have to transcribe your data, you have to enter your data into system. These are data processing. So once your data processing, like data entry is over, transcription is over, and then when you start working with any software, SPSS or this software, from there your data analysis starts. So data processing includes data entry plus data analysis. But data analysis is the only the things that you do for analyzing your data, for generating result, for generating table, for generating graph, something like that. So words are very, you are confused इसलिए because ये जो है डाटा प्रोसेसिंग जो है इट स्टार्ट वंस यू कंप्लीट योर डाटा। डाटा प्रोसेसिंग में भी हमको लगता है डाटा कैसे एंट्री करेंगे, डाटा को सेव करके रखेंगे, ये भी डाटा प्रोसेसिंग का पार्ट है। बट डाटा एनालिसिस डिफरेंट, आपको डाटा एनालिसिस करके इसमें जो रिजल्ट निकालना है वही है डाटा एनालिसिस। ओके, Yes, sir. Thank you so much, sir. उसमें कोशिश करिए ना, मैडम जो डाटा दिया है उसमें कोशिश करिए, उसमें डाटा आपका उसमें कोशिश करिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए। सर आप कोई सॉफ्टवेयर्स जो है, जैसे अभी अनूप ने क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसक्राइब करने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम आप सजेस्ट कर देंगे क्या पार्टिसिपेंट्स को? आजकल क्या हो रहा है ना, एमएस जो एमएस वर्ड जो है ना, एमएस माइक्रोसॉफ्ट में भी है। आप बोलेंगे वो आपको टाइप करते जाएगा, जी जी जी। तो टाइप करते जाएगा, इसीलिए बोलने के बाद में आप ऑडियो बजा दीजिए, वो टाइप करते जाएगा। बट इसीलिए आपको आपका जो आसेंट है ना, आपका आसेंट पूरा फ्लुएंट होना चाहिए, लाइक अमेरिकन इंग्लिश और लाइक यूके इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश को वो ट्रांसलेट कर पाएगा, दूसरा कुछ ट्रांसलेट कर देगा। सर ऐसा हो सकता है कि वो ऑडियो हमने फिड कर दिया कहीं पर और डायरेक्टली जो ऑडियो है उसके अकॉर्डिंग लाइक ट्रांसक्राइब फॉर्म में हमें एक फाइल मिल जाए। वही वर्ड में एक वर्ड फाइल कर दीजिए, उसमें ऑडियो जो बजाए देंगे, बहुत सारा एप्लीकेशन है मैडम, उसमें बजा दीजिए ना, वो टाइप कर देगा। बट हमारा प्रॉब्लम होता है इंडियन इंग्लिश को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, बहुत सारा मिस्टेक उसमें करता है। जैसे आपका बहुत बढ़िया इंग्लिश में एसेंट है, आप बढ़िया से बोलेंगे तो वो टाइप कर देगा। बट यूजुअली हम जो इंटरव्यू करते हैं ना, इंटरव्यू वाला कितने कौन आता, तो इसीलिए थोड़ा सॉफ्टवेयर दिक्कत होता है सॉफ्टवेयर। Hope all the participants are working on those files which were shared on WhatsApp group. There are total 6 files. वही छोटा फाइल मैंने भेजा, आप उसमें कोशिश करिए, हो रहा है थोड़ा ट्राई तो करिए।
आप में से कोई ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं और स्क्रीन शेयर करना चाहे तो आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं यहाँ पर। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको ड्यूरिंग द वर्किंग। सर लर्निंग प्लेटफॉर्म अगर कोई गलती भी होगी या आप कुछ गलत भी कर रहे हैं तो डोंट वरी। नहीं है एनीबॉडी बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म ओनली। आपको कुछ पूछना है आप क्या बताइए सर, इसमें मुझे कहाँ जाए। So there is one question in the chat box. Rasmi ma'am is asking to create variable. We have to read full document. मैडम वेरिएबल क्रिएट है ना, वेरिएबल जो हम लोग टॉप में लिखा है, उसका नेम क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो टॉप में लिखा है। वैसे बिकॉज आप जो रिसर्चर आप है ना, आप जो टूल बनाया, टूल जब आप बनाते हैं आपको तो पता है कौन सा वेरिएबल आप यूज किया है, तो इसी में फुल जो एंटायर डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। बिकॉज वो जो क्वेश्चन जो आप इंटरव्यू शेड्यूल बना है उसी में तो लिखा है ऑल वेरिएबल्स। आप इंटरव्यू शेड्यूल का फर्स्ट पेज लीजिए, उसमें जो जो वेरिएबल है उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद में आप डाटा को जाइए और डाटा में धीरे धीरे डाटा में जो भी है उसको आप ऐड करते जाइए। ओनली वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपका जो क्वेश्चन याद चाहिए आप नहीं चाहिए। गीतांजलि मैम का मेरे पास से पर्सनल पे मैसेज आया था कि उनके नेटवर्क का इशू था इसलिए वो आउट हो गई, लॉग आउट हो गई। रमाकांत सर। जी मैडम। सो क्या हम वाइंड अप करें सेशन? पार्टिसिपेंट से एक बार पूछ लेती हूँ मैं, अगर कोई क्वेरी है तो दे कैन रेज देयर क्वेश्चंस, एल्स विल वाइंड अप द सेशन, राइट? यस यस। So dear participant, do you have any query? Hope you are working with the files those have been provided by Ramakant sir. I will be very happy at least one or two people can share the screen. I can see that really they are working. Otherwise, you know, our discussion maybe 2 hours will be useless, I will feel. Yes sir, yes sir. Nothing is happening. Nothing is happening means useless.
then I want at least 1 or 2 people, please share your screen and show that, sir, this is some. Is anyone, Rasmi ma'am, are you really working on this software? Sarita ma'am, Shruti ma'am, Shruti Verma ma'am, Yuvika, Ved Kumar sir, Pratibha ma'am, anyone can share their screen. Okay, madam, ठीक है, you. हेलो Yes, sir. Yes, sir. Ved मैडम Kumar sir. नाम लिया आपने Yes, sir. हेलो हाँ, you बोलिए. Yes, sir. आप म्यूटेड है, वेद कुमार सर. आप अनम्यूट करिए अपने आप को. सर, मे बी नेटवर्क इशू, वो बाहर हो गए. Okay, madam, you conclude, no problem. Okay, okay. So, dear participants, it was really a very nice session and hand-on training provided by Dr. Ramakant Mohalik sir from NCERT Orissa. Sir, really, although I am from science background, मुझे उतना कुछ मतलब experience नहीं है data handling का. Usually I handle quantitative data and I use SPSS during my research work. So qualitative data analysis कैसे करते हैं, तो it's a really very interesting job. Like मैंने इनफैक्ट मैंने डाउनलोड किया और I can share, but आपके साथ में वो साथ साथ नहीं कर पाई. मुझे भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और I guess it help a lot in research. Whenever you plan any research like which are based on consumer customer base, it will help a lot. Yes, you know, madam, जो commerce में काम करते हैं ना, the customer yes, behavior, yes. those who are working on a customer behavior, Yes, yes, yes. they use it. Yes, sir. So मुझे भी काफी कुछ समझ में आया. मैंने पूरा सेशन, ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जो मैं आज सेशन पूरे अच्छे से अटेंड कर पाई हूँ. अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था नेटवर्क का, तो यूजुअली बाहर हो जाती थी. तो थैंक्स अ लॉट सर फॉर वंडरफुल सेशन and hand-on training program, and we'll stay connected. This is just a beginning. First time आप सेज यूनिवर्सिटी इंदौर से associated हुए हैं, and in future in any program will definitely will connect with you. So thank you so much. Participant side से अगर feedback मिलता है सर के लिए तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा. Anyone from the participant side, अगर वो कुछ कहना चाहे regarding today's session, so you are most welcome. So thank you so much, sir. Hello. हाँ जी. हाँ जी madam. Thank you, sir. The session was wonderful. And the information you provided, we will definitely use. Right now, I'm not able to show you the screen, but I will try to work on this. Okay, madam. Thank you so much, sir. Sir, और ये तो, और anyone? yes, anyone, any other participants want to share their experience regarding today's session? Sir, let me share you one thing. We are having participants from the different states as well. Okay. We are having participants from the Rajasthan, Punjab, and apart from MP, we are having participants from the Maharashtra, UP. So, no, out of 32 participants, around 50% participants from other state. Okay. So, thank you so much, sir, once again. Okay, madam. Namaste, madam. Thank you very much. We'll work together. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Stay tuned. We'll meet you all tomorrow sharp at 12:30. Thank you. Bye-bye. Stay tuned. Have a good day.